Hi, very good evening. This is Sangeeta from my daily office, home office, and I welcome you all to this webinar of three secrets to be how to be resourceful to influence at workplace and make your growth, your promotion, your salary hike to be obvious, right? And so let us have some ground rules. I welcome you all to this webinar and ask the questions at the end. I have kept one note here because I'll forget. So that is why don't worry about that. And um, whenever I ask you questions, please do respond so that I know that you are there and listening to me carefully, right? And stay here for 90 minutes so that whatever I have to say, I'll tell it in 90 minutes. My system actually takes 90 minutes to be explained properly, right? And thank you again for here. And whoever is ready to start, then please write ready, right? And I promise you, you will start learning from the webinar itself. And let us start. So let me first share my screen. So this is about three-step blueprint of leadership growth using resourceful influence. And this is an unusual way of achieving significance. Why I call unusual, because you will learn slowly. And this is for mid-career professionals with 5 to 12 years of experience who are feeling stuck and unfulfilled. And why they feel unfulfilled and stuck, I have some indicator for that also, whether you are feeling stuck or not. I'll tell you that 90% of you, 90% of the professionals so far, whoever I have interacted, they don't know that there is a solution existing. So they say if it is workplace, everybody is in a job, means it is nokri. Nokri is always nokri, so there is no solution to be happy at workplace. And unless you are happy, you are not very productive. You agree with me? So here what I do is in my three secrets, it covers whether you can design your unique roadmap because you are unique, right? And you will be sought after whether you have qualifications or experience or skill or not. And you will create great victories every day, and that will make you ready for 3x growth. Make growth obvious because everybody thinks that whether ग्रोथ विल नौकरी आए प्रमोशन आएगा कि नहीं, सैलरी हाइक होगी कि नहीं, ये सब ऑन लाइक से नॉट वेरी क्या बोलते हैं डिसाइडेड नहीं होता ना. एवरीबडी लाइक एंटिसिपेट्स होगा कि नहीं होगा, राइट? सो you can make it obvious. Hoga hi, right? And these are the three secrets. The first secret is the resourceful person wins continuous recognition and growth. ये मेरा हुआ, मैंने बहुत सारों को देखा होते हुए, so ये होता ही है. And just recently I heard somebody saying that the most prominent 19 companies of the world, including IBM, they don't care what education qualification you have, right? Exciting, right? And I was listening to that. Is it okay? I am listening properly because it was a recording, so I could listen to it time and again. And they don't care about what qualification you have, but they believe in training their employees for say 3 to 4 months, and then they prepare their employees to perform and deliver, right? And the secret two is how to succeed and achieve your goals despite organization related struggles. If you are not in those 20 organizations so far, then you are in some ordinary organizations like everyday organizations that we work in. Then पॉलिटिक्स आएंगे, then friction होगी, conflict होगा, then still you can do your best and move on, grow on and achieve your goals despite whatever problem you are facing.
right? This is secret number 2, how you can do that. And secret number 3 is to stay relevant without feeling burnt out. कब तक करेंगे, कब तक prove करेंगे? So there is a trick to it, how you can actually stay relevant and always do something new, so that you are always surprising everybody, to the management, right? And influencing. So who I am? Obviously, I'm Sangeeta. I'm a leadership growth mentor, and so far I have trained 18,000 professionals to impact about 1 crore lives since 2008. In fact, I have 12 plus years of experience, but since 2008 I have started noticing what I have been doing. It has been huge project since 2008, and since 2008, I have impacted 1 crore lives, directly or indirectly. And whoever I have worked directly, in fact, 18,000 professionals I have worked directly, but I have impacted 1 crore lives indirectly also through them. So whoever I have worked directly, they are still doing the great work. They are continuing this great work. I don't have to train them over and over and over again. So I know that I have to just train them, orient them once, and they will carry on whatever goal I have. And believe me or not, at least 2 skills I have found in everybody. Everybody, at least 2. There are more than 2. And if I have worked with them for, say, more than 2 years or so, then I would have found out more skills than that. At least 5 to 10. So that surprises you, right? But that is what. And we will find out those skills also in you. And why I am doing this? Because what I have seen is लोग अपने वर्क प्लेस के बारे में कंटिन्यूस क्रीविंग करते हैं, परेशान है अपने वर्क प्लेस से, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर परेशान अबाउट दी बॉस, दे आर परेशान अबाउट देयर कलीग्स, जूनियर सीनियर्स, एवरीबडी, बजट नहीं आता, ये नहीं होता, एंड सैलरी प्रमोशन की बात तो है ही, somebody and they are sidelined, somebody else is given prominence, all these are there. So ये नेगेटिविटी क्रिएट करती है, बट डिस्पाइट दैट हाउ यू कैन हैंडल एंड अपने काम में मस्त रहो, राइट? दैट इज व्हाट I have seen, I have experimented, and people who are dedicated, who are known to be dedicated, they do that. So that is what I have seen. So I want to tell you that. As I have told in the beginning, 90% of people don't think that there is a solution. There is a solution. प्रॉब्लम हमेशा अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेके आता है, सोल्यूशन लेके आता है, वेदर हमारी हमारी औकात है कि नहीं उसको ढूंढने की, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम सोल्यूशन ढूंढ पाए कि नहीं. लेकिन हम जैसे जैसे अपने औकात बढ़ाते जाते हैं ना, देन सोल्यूशन भी ऑब्वियस होते जाती है. सो दैट इज व्हाट I have the conviction of. Then creative utilization of energy. If you save energy, that negative energy of craving करने में you waste energy, of if that energy gets saved, then क्या करोगे उस energy के साथ? क्या I'll give one example. मेरी एक friend है जिनको मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, एंड बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही पोटेंशियल है उनके अंदर. उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, एंड शी इज मैनेजिंग समथिंग व्हिच शी वाज नेवर ट्रेन्ड. इवन इन दैट कंपनी शी वाज नेवर गिवन एनी ट्रेनिंग, बट क्लाइंट को, लाइक से यूरोपियन क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं. MDM टेक्नोलॉजी है समथिंग फाइनेंस रिलेटेड, दैट इज व्हाट शी इज हैंडलिंग. और उसमें उनकी कोई कैपेबिलिटी, मतलब क्वालिफिकेशन पहले से नहीं है, एंड स्टिल शी इज एबल टू डू. तो बट वो हमेशा ही क्या करती हैं, परेशान है अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, इतनी परेशान है कि शी हैज फॉरगॉटन टू यूटिलाइज हर एनर्जी इन डूइंग समथिंग, लर्निंग समथिंग मोर. कोई भी किसी भी नए स्किल को सीखते हुए कोई भी पहले से सीखा हुआ नहीं आया होता है ना. इवन इफ यू डू ए डिग्री, देन ऑल्सो टू लर्न समथिंग, ऑल्सो आपको
इंटर्नशिप करनी पड़ती है, राइट? आपको थोड़े दिन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. सो शी कैन थिंक दैट शी इज अंडर सम इंटर्नशिप, ये कर सकती है, बट शी इज नॉट एबल टू थिंक लाइक दैट. अनदर पर्सन, अनदर लेडी हैं जिनको वेट लॉस करना है, उनको कुछ माइंड ठीक करना है, अपना इमोशनल हेल्थ भी उनका प्रॉब्लमेटिक है. तो मैंने पूछा उनसे कि भाई आपको क्या पढ़ने का मन करता है? शी सेज नथिंग. व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर वेट लॉस? शी सेज नथिंग. व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग सुबह 9 बजे से 12 बजे तक? नथिंग. एंड आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस एट 5:30, 5:45 और 6, उसके बाद क्या करते हो? नथिंग. शी डज नथिंग. भाई कुछ भी नहीं करते हो तो हाउ कैन यू गेट एनी सोल्यूशन ना? सो एनीवेज, दैट इज व्हाट. जब आपके पास एनर्जी होगी, जब आप थिंक करोगे, देन यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स. मतलब एंडलेस काम है एंड एंडलेस विक्ट्रीज हो सकती हैं फॉर यू, राइट? एंड अगर आप थोड़े से भी आपका दिमाग उधर नहीं लिए तो हाउ कैन यू डू एनीथिंग? करने को कुछ भी नहीं होगा. सुबह अगर आपने आउटलाइन नहीं किया कि क्या करेंगे, आपके दिन में भी आप इधर उधर थोड़े से काम कर लोगे, जो तो 2-3 याद आएंगे, 10 और नहीं याद आएंगे जिनके बारे में आप कुछ नहीं करोगे. एंड देन आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर सम टाइम यू रिमेम्बर अबाउट दोज थिंग्स. उसके बाद आपको याद आएगा, आप बात करोगे उसके बारे में याद, तो बोलोगे अरे उसी दिन करना था, राइट? So give yourself time to find your potential. वो जो काम है ना, जो आप भूल गए थे, उसी काम में शायद आपका पोटेंशियल छिपा था. टाइमली वर्क अगर किए होते, देन इट वुड हैव ओपन अप सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू. वो तो आपने सोचा ही नहीं, राइट? तो ये सब क्रिएटिव यूटिलाइजेशन के लिए आप कैसे टाइम निकाल सकते हो, ये यहाँ पे सीखेंगे. दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट. इतने सारे लोगों की एनर्जी अगर सही लाइन में लग जाएगी तो मैं बताऊंगी कि मैंने क्या किया. अगर मैं अकेले ये वो सब कर सकती हूँ, तो इतने सारे लोग अगर मिल जाएंगे तो ये ग्लोबली कोई क्राइसिस रहेगी क्या? नो. That is what I think, I believe. So that is why I am doing this. So defining moments in my life कब आए? Let us see. So I'm a big fan of my father, right? उसके पहले मैंने काफी सारे बुक्स पढ़े थे कि क्यों मेरे पापा की मैं चमची हूँ. उसका रीजन भी है. प्यार से मैं उनकी चमची हूँ, हर बेटी अपने पापा की चमची होती है, ये तो है, लेकिन आई एम ए चमची बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. बहुत सारे बुक्स मेरे पापा देते थे ला के मुझे. एंड बचपन से ही, जब से मुझे याद है, जब से मैं 6-7 साल की हुई थी, तब से मैं बुक्स पढ़ रही, राइट? और मेरी हाइट जितनी होती थी उतने ही बुक्स लेके पापा देते थे. नाउ किसका किसका बुक पढ़ा? बायोग्राफी सारे बहुत सारे पढ़े. सबसे प्रोमिनेंट बायोग्राफी किसकी लगी? गांधी जी की लगी, और फ्रीडम फाइटर्स की लगी. नेहरू जी थे, टैगोर थे उसमें, मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे. ऐसे बहुत सारे लोग थे. और उसमें कुछ बाद में मैंने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के भी बायोग्राफी पढ़े. तो उसमें मुझे क्या लगा? उसमें लगा कि गांधी जैसे पर्सनालिटी हम खुद बन जाए तो. बट गांधी बनने में क्या है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट गांधी? उन्होंने हम लोगों को इंडिपेंडेंस दिलवाया, राइट? हम किसको इंडिपेंडेंस दिलवा सकते हैं? क्या दिलवा सकते हैं, राइट? अब अगर आप इतने प्रॉब्लम में हैं एंड इफ आई गिव यू फ्रीडम फ्रॉम दैट, तो हो गया ना फ्रीडम. आपका देश इंडिपेंडेंट नहीं था, आप इंडिपेंडेंस दे दिए, तो हम सब इंडिपेंडेंट हो गए. आर वी रियली इंडिपेंडेंट? आर वी रियली फ्री? नहीं है. तो वो था. तो उसके बाद मैंने देखा कि एक सिस्टमेटिकली काम करने में, अपना कैरेक्टर बिल्ड करने में ही अल्टीमेटली गांधी हुआ जा सकता है. इतने सारे फ्रीडम फाइटर में एक गांधी को क्यों याद करते हैं हम? बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, राइट? इतने अच्छे, मतलब पता नहीं, जो सोच लिया वही सोच लिया. और उनका एक स्टाइल था. तो मैंने अपने पापा को वही स्टाइल फॉलो करते हुए देखा. सिंगल हैंडेड, सिंगल माइंडेड डेडिकेशन फॉर समथिंग.
कौन क्या बोलता है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे बताया कि नोबडी लाइक्स टू बी वर्किंग बिहाइंड द स्टेज, चुपचाप अपना काम करते रहना हमें कोई बिलीव नहीं करता, क्योंकि एवरीबडी वांट्स लाइमलाइट, एवरीबडी वांट्स द स्टेज, राइट। तो उन्होंने बोला कि नंबर 2 पोजीशन जो बिहाइंड वर्किंग बिहाइंड द स्टेज काम करना होता है वो किसी को नहीं पसंद है। तो ये जो कर पाए, नोबडी लाइक्स टू बी किंग मेकर। लेकिन और उन्होंने एग्जांपल ये दिया कि फुटबॉल फील्ड में जो बंदा गोल स्कोर करता है उस बंदे को ही याद करते हैं लोग, राइट। व्हाट हैपेंस टू द पर्सन हु पासेस ऑन दैट बॉल टू दैट स्ट्राइकर, उस बंदे के बारे में कोई नहीं याद करता, राइट। तो उस बंदे के बारे में अगर वो नहीं सही टाइम पे बॉल पास करता तो गोल ही नहीं होता, राइट। सो दिस इज द person who works behind the stage or works for the ultimate benefit of the team, for the win. He is thinking about the win, right? He is not thinking about himself. So that is the difference, and he is a king maker. किसी को ध्यानचंद अगर इतने सारे गोल स्कोर किए तो अपने आप तो नहीं किए होंगे ना, उनको कोई पास दिया होगा, तो इतनी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग टीम बिल्डिंग थी। So that is what धीरे धीरे करके स्ट्राइक हुआ मुझे। एंड सो दैट इज व्हाट व्हेन ही टोल्ड कि दिस इज द की टू एवरीथिंग, टू ए बिग अचीवमेंट। और उन्होंने मुझे वो सारी बातें बताई वो उसी टाइम में। अच्छा, ये स्टोरी थोड़ी से देर से बात करते हैं। तो ये दोनों चीजें थी। देन द थर्ड चीज ही, आप अगर किसी और को अचीवमेंट, इफ यू अलाउ द क्रेडिट टू गो टू समबडी एल्स, कोई और कर रहा है उसको आप अगर क्रेडिट देने लगते हो, देन यू कैन अचीव सो मेनी थिंग्स। जैसे फॉर द एग्जांपल, सपोज देयर इज ए बिग थिंग, बिग प्लानिंग हो रही है। अभी जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मेरी कोई प्लानिंग हो रही है एंड देन द बिजनेस प्लान हैज टू बी मेड। अब जो इस प्रोजेक्ट का लीडर है उसको वो बिजनेस प्लान करने आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता, बट ही डिडंट सजेस्ट दैट, सो आई टुक ओवर दैट, so I played the second fiddle. That is what today only I did that, and this is an example of playing second fiddle for the next right step. Whatever is the next right step, वो leader करता है कि नहीं करता है, your ultimate goal is to achieve something in that project, right? If your goal is there, then you will do something which is required. And if you allow that credit to go to somebody else, ultimately मेरे leader ले जाएगा ना वो credit, ले जाए, मुझे क्या अचीव करना था, मुझे जो अचीव करना था वो तो मैंने कर लिया, राइट। देन ये चौथी बात है जो मुझे समझ आई कि इफ यू डोंट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग फॉर लॉन्ग, then someday you will be in a strategic position when you will not be able to take a decision. अभी आज मैंने अगर डिसीजन नहीं लिया, कल भी नहीं लिया, परसों भी नहीं लिया, और मैंने हमेशा ही डिसीजन किसी और पे छोड़ा, और सिर्फ इस नाम से कि वी हैव टू फॉलो समबडी, माय लीडर, एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, देन दैट इज नॉट मेकिंग एनी गुड टू यू। कभी मेरे पास भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए आएगा टाइम, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक ए डिसीजन बिकॉज I don't have the habit of taking a decision. So, abhi, always I thought कि I should take a decision. मेरे दिमाग में जो आए, I discuss and take the responsibility. So that is what I call as decision making. Decision अगर हो गया कुछ कि ये करना है, then I take the responsibility, right? That is what I call decision making in my case. आपके केस में different भी हो सकता है, राइट। डिसीजन मेकिंग की हैबिट आपको रखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू टेक ए डिसीजन व्हेन द टाइम कम्स। आप सोचते रह जाओगे, राइट। एंड द लास्ट थिंग दैट there are many things I learned from my father obviously, but ये जो है बहुत significant decisions है, facts है जो मेरी जिंदगी को shape दी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। And this is about if you put 5% more effort in finding facts, अभी आप जितना करते हो उससे 5% ज्यादा अगर एफर्ट लगाओगे, then you can discover startling stories yourself. फॉर एग्जाम्पल अभी बात कर सकते हैं, मेरे पापा
हीराकुद कॉमन डेवलपमेंट में काम कर रहे थे। बेसिकली ये है कि हीराकुद डैम बन गया, उसके बाद लोग काफी सारे डिस्प्लेस्ड हो गए, उन लोगों की बात किया हुआ, उस एरिया की बात किया हुआ। हीराकुद डैम किस लिए बना? इरिगेट करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। बेसिकली ये दो, और भी बहुत सारे फायदे हैं एक डैम के पानी के। ये जो लोग बन गए ना, ये लोग डिस्प्लेस जो हो गए, इनको और जमीन कहीं और पे मिल गई, लेकिन जिस जमीन पे वो थे, काफी दिनों से थे, उस जमीन पली हुई थी, उसको पली हुई बोलते हैं, वहां पे उन्होंने बनाया था उस जमीन को। आप यूं ही जाके अचानक से किसी दिन खेती करके प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते हैं, उस जमीन को आपको संवारना सजा पड़ता है, राइट? तो उनको जो जमीन मिली, दैट वाज नॉट सो प्रोडक्टिव। तो उसमें से उन प्रोडक्टिविटी अगर नहीं आए, तो वो बंदा पहले अपने जमीन से जो चला गया, उसको उतनी प्रोडक्टिव नहीं मिली, प्रोडक्शन नहीं मिला, तो वो क्या होगा? गरीब हो जाएगा ना। और जो पैसे मिले हुए होते हैं कंपेंसेशन से, उससे तो उनका घर बनाना और उससे अपने जिंदगी को फिर से संवारने में वो पैसा चला जाता है, राइट? तो क्या हम कभी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं? अभी सरदार सरोवर के बारे में आपने सुना होगा, वहां पे क्या हो रहा है? कहीं कहीं पे भी आज डैम बनने नहीं दे रहे हैं लोग। जो महाराष्ट्र में डैम बना, उसके चलते तमिलनाडु में बारिश हुई, केरला में बारिश हुई, ये आज लोग समझते हैं। ये जब बन रहे थे तभी साइंटिस्ट ने अलार्म किया था, राइट? तो ये एग्जाम्पल है कि 5% अगर आप ज्यादा एफर्ट लगाओगे वहां, तो ये लोग हो गए। और दूसरी बात ये है कि एक डैम प्रोजेक्ट जहां पे बनता है, वहां पे जो फर्टाइल जमीन होती है ना, वो तो डैम में चली जाती है, राइट? तो जो अनफर्टाइल होते हैं जमीन, वही रह जाते हैं, वही मिलते हैं लोगों को, राइट? और जब जमीन के आसपास क्या होता है? पानी जहां पे जम के रहता है, वहां पे वाटर लॉगिंग होता है, तो प्रोडक्टिविटी वैसे भी कम हो जाती है, राइट? ये 5% और एफर्ट लगाने से ये स्टोरीज हमको मिलते हैं जो हम नहीं लगाते। फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ रिसोर्सफुलनेस, ऐसे हुआ, मेरी पढ़ाई हुई, मैं बड़ी हो गई, उसके बाद मैंने क्या किया? नौकरी की, राइट? नौकरी में यही सेम चीजें मैंने लगाना शुरू किया। I started applying all those whatever I have learned from my father, right? वो लगाने की जब कोशिश की, then there were many difference of opinion with my team, especially my boss. Like say, मैं एक सोशल रिसर्च कंपनी में ज्वाइन की थी, एंड इन दैट सोशल रिसर्च कंपनी एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, लाइवलीहुड के बारे में, ये सब जितने सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में एनालिसिस होता है कि उनका इम्पैक्ट क्या है लोगों पे। दैट इज व्हाट माई जॉब वाज। तो उसमें क्या होता है, ये 5% और लगा देते हैं तो स्टार्टलिंग स्टोरीज आ जाएंगे। सो मैं तो नहीं जा रही हूँ फील्ड पे, तो लोगों को भेज रहे हैं, एन्यूमरेटर बोलते हैं उनको, इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं, उनको ट्रेन करके भेजा। तो उन्होंने जो स्टोरी, एक क्वालिटेटिव पार्ट होती है, हम डेटा लेते हैं, लोगों को एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे दिया, उल्लेख लिया, वैसे भी होता है। और डिस्कशन करते हुए भी लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, स्टोरीज मिलते हैं, उसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। तो ये जो क्वालिटेटिव स्टोरीज में आते हैं, कभी कभी लोग कुछ और बोल जाते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हैं। And when I tried asking more questions about these stories, why people are telling something which is not aligned with whatever our expectation was. See, first of all, हम investigate ही क्यों कर रहे हैं? Because we don't know something, right? तो ये था तो उस ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के, ये सब था, बॉस के साथ प्रॉब्लम था, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। तो मैंने सोचा कि चूंकि मैं ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेशर हूँ और एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन की। वहां एक बार मैं गई थी एक एचआर ट्रेनिंग में, वर्कशॉप में। सो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन मीन्स 1 पर्सन मल्टीपल काम। तो मेरा काम एचआर भी था, सो आई वाज सेंट टू वन एचआर वर्कशॉप। वहां पे मैं सबसे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से थी, और बेसिक्स बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन था, वहां से 2 सीनियर बंदे आए हुए थे। इट वाज ए वर्कशॉप फॉर सीनियर पर्सन इन द मैनेजमेंट। सो आई बीइंग फ्रॉम ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, आई वाज सीनियर पर्सन, सो आई वाज सेंट टू दैट वर्कशॉप। सो मैंने एक दिन लेके
मेरे पास कोई एचआर पॉलिसी नहीं थी, तो मैंने फॉर्मुलेट करके एचआर पॉलिसी वहां पे प्रेजेंट किया था। मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स है, एंड थोड़ा बहुत मुझे कंप्यूटर आता था, बस उतना है। सो नो एचआर बैकग्राउंड, राइट। फिर भी मेरा एप्टीट्यूड ही वही था, कि यही सीखा था पापा से कि टीम अगर बिल्ड करो और लोगों को अगर आप हेल्प करो ग्रो करने में, देन अल्टीमेटली योर गोल गेट्स अचीव्ड। ये था दिमाग में, ये था। तो मैंने वो सब लगा के एक एचआर पॉलिसी बनाया और प्रेजेंट कर दिया। सो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रिसोर्सफुल, एंड दिस वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड, राइट। तो ये जब हो गया, सो देन आई वाज थिंकिंग कि ये कैसे हुआ, कि like say whether this is usual. Then what happened, in a very small organization, if you start looking for good qualified people, वो तो होते नहीं। So whoever you get, बहुत अच्छी सैलरी भी नहीं दे पाते छोटे ऑर्गेनाइजेशन से। सो देन whoever you get, you bring in, उनको ट्रेन करके फिर आप काम करवाते हो। सो उनका आप रिसोर्सफुलनेस बिल्ड करते हो, राइट, एंड देन काम करवाते हो और काम कर लेते हो, है ना। सो दिस वाज द ट्रिक। सो लेट अस सी कि इंडस्ट्री डेटा क्या बोलता है। अगर वही है वही है, तो देन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम देन। सो इंडस्ट्री डेटा, उसके बाद ये होता है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एम्प्लॉइज प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि सैलरी बहुत उल्टा पुल्टा मिलता है। देन रिलेशनशिप विद बॉस, मेरे भी था। वर्क कंडीशन शायद नहीं है। देन सुपरविजन, इतना माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं बॉस कि अच्छा नहीं लगता, सो लोग भाग जाते हैं। रिलेशनशिप विद पीयर्स, अपने कलीग्स भी परेशान करते हैं, ये रीजन था। और सेकेंड रीजन ये था, सेम फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स अभी हमने देखे यहाँ पे, सैलरी, रिलेशनशिप विद बॉस, वर्क कंडीशन, सुपरविजन, रिलेशनशिप विद पीयर्स, सेम रीजन फॉर सम अदर सेट ऑफ पीपल। कुछ लोगों को तो ये बुरा लगा इसलिए भाग गए, बट यही सेम रीजन थे व्हाई पीपल स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। अब कुछ लोगों को बुरा जब लग रहा था, कुछ लोगों को तो अच्छा कैसे लग रहा था। कुछ लोगों को इसलिए अच्छा लग रहा था बिकॉज इट इज डन इन ए ट्रांसपेरेंट वे। कंपनी पॉलिसी, एवरी कंपनी हैज ए पॉलिसी। सुपरविजन होता है, हर कंपनी में सुपरविजन होता है, इसीलिए हायरार्की होती है। रिलेशनशिप विद बॉस हर कंपनी में होते हैं, right? How you work out your relationship with your boss, or your boss how he works out the relationship with you and the juniors and the team, that matters, right? इसीलिए अच्छी होती है किसी कुछ कुछ लोगों के लिए। और जहां पे ये वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, then it is not anymore a toxic environment, it is a very क्या बोलते हैं, constructive environment, right? The same reason. So it is about behaviors, right? Behavior of anybody, बॉस का हो सकता है, मैनेजमेंट का हो सकता है, अपना हो सकता है, right? And जहां पे whenever the leaders are not inspiring, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉइज लीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। बट आज सोचा, कल तो जॉब नहीं मिलता ना, दे टेक सम टाइम। किसी कोई 2 महीने में छोड़ देता है, कोई 5 साल लगाते हैं छोड़ने में। जब तक वो लगा छोड़ते नहीं, तब तक लेस देन 20% प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं। हाउ डू यू इंस्पायर देम? जितना उनको बोला जाए उतना ही करते हैं। सो दैट इज नॉट इंस्पायर्ड एक्शन, राइट? जब वो नहीं करते हैं, देन व्हाट? आप उनको उनसे कैसे करवाओगे? आप उनको ग्रोथ नहीं दो, प्रमोशन नहीं दो, लीडर्स आर एनीवेज नॉट इंस्पायरिंग, तो वो वैसे भी इंस्पायर्ड नहीं है। कुछ भी नहीं दे रहे हो तो हाउ डज इट मैटर? वो तो नौकरी ढूंढ ही रहा है, राइट? तो मैंने कुछ मार्केट रिसर्च अभी किए आप लोगों को बताने के लिए कि आपको क्या परेशानी होती है। आर यू अलाउड टू बी यू एट वर्क प्लेस? आप जो हो, जो मैं हूं, क्या मुझे अलाउ किया जाता है? तो देखिए, यस ऑलवेज 46% ने बोला, लेकिन सब कुछ डाउट है
तो मेजॉरिटी 54% को डाउट है। ऐसे ही सक्सेस इज गुड बट फेलियर इज बेटर, और व्हाई डू मोस्ट पीपल फेल टू सक्सीड? पीपल फेल टू सक्सीड क्यों होते हैं? लैक ऑफ गाइडेंस 42। देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो है लोग हैं, इसमें से लैक ऑफ गाइडेंस is an external factor, but बाकी सारे lack of concepts, lack of practice, lack of self esteem, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना लेने के लिए। So majority of people they fail because they don't work on themselves, right? Then do you think the scenarios which you make up in your head actually happen in real life? किसी ने पूछा है, ये मैंने पूछा एक्चुअली, मैंने पूछा कि भाई आपने मेकअप किया है, सोच लिया है कि ऐसे कुछ बुरा होगा, होता है क्या? सो 35% टाइम होता है, लेकिन बाकी सारा टाइम जो है लोगों को बहम होती है, राइट? एंड व्हाई डू यू क्विट योर जॉब्स? तो इसमें है टू मच और टू लिटिल वर्क, पुअर वर्क, दे फायर्ड यू 5% में है, और देखिए बैड बॉस, वर्क कल्चर 57% है, मोर मनी 24% है। एक्सटर्नल है कुछ, लेकिन 30% जो है सीधे ही बोल रहे हैं कि ये जो है उन्होंने अपने आप पे काम नहीं किया। आप क्या देखते हो हायर करते हुए? विलिंगनेस टू लर्न, दैट इज व्हाट वी सी ना। जब हम करते हैं, हमने वी डोंट लुक एट गुड पास्ट एक्सपीरियंस, उसका एबिलिटी है कि नहीं वो सारा नहीं देखा। वी आर लुकिंग एट हिज विलिंगनेस, हिज एप्टीट्यूड। किसी ने मुझे बोला दैट वो फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी ना, शी वॉज वरीड अबाउट हर वर्क प्लेस, और उन्होंने किसको रिक्रूट किया? अभी अभी किया है, दोज हु हैव गुड एप्टीट्यूड, राइट? तो ये सारे कुछ मार्केट रिसर्च थे जिससे मुझे पता चला कि कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं, नॉट ऑल द इश्यूज एट वर्क प्लेस रिलेटेड टू वर्क बट अफेक्टिंग वर्क परफॉर्मेंस। तो वो सारे क्या है, तो उसको मैंने लिस्ट आउट किया है। सो हियर यू कैन सी whatever is in white are workplace related issues, but there are many in pink which are not workplace related issue but still hampering workplace performance. तो relationship with spouse, वो वर्कप्लेस में क्या करना है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, आपका अपना बिहेवियर है। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आप खुद को नहीं कर सकते हैं। फ्रिक्शन विथ फ्रेंड्स, उसको क्या लेना देना है वर्कप्लेस में? लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। फियर ऑफ चेंज, सारे के सारे आपके माइंडसेट इश्यूज हैं, पर्सनालिटी इश्यूज हैं, और ये इसलिए है कि आप भटके हुए, राइट? हाउ टू डील विद दिस? तो इसीलिए मैंने ये सीक्रेट 3 बनाया है। मैंने देखा कि लोगों को नहीं पता है कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए वो लोग भटके हुए हैं। तो लेट मी टेल पीपल कि ये 3 सीक्रेट हैं जिसकी वजह से वर्कप्लेस में परफॉर्मेंस पे इशू होते हैं और आगे का ग्रोथ नहीं होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रिसोर्सफुल पर्सन विंस कंटिन्यूअस रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ, जिसके पास भी रिसोर्सफुलनेस है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 30 कंपनीज जो है दे वांट रिसोर्सफुल पीपल, they don't want qualified people. Secret 2, how to succeed and achieve your goals despite organization related struggles. कुछ भी है कुछ भी है ऑर्गेनाइजेशन में होता रहे, but still you can achieve your goals, बशर्ते आपको पता चले कि आपका गोल क्या है। Secret 3 is to stay relevant without feeling burnt out, right? These are the 3 secrets. Let us see. My mission is to impact 1 billion lives with 1 lakh super performing global players in 139 countries with a $1 billion enterprise. 139 countries क्यों? स्प्रेड करना है, और क्या? स्प्रेड, अगर थोड़े से लोगों को भी सिखा दे तो वो लोग अपने कंट्रीज में स्प्रेड कर देंगे ना। This should be something, resourcefulness should be something, a concept that should spread. That is what my idea is. And बिना पैसे के तो कोई काम नहीं करेगा, so that is why I want to have a $1 billion enterprise also, right? And my system is resourceful influencer club. इस सिस्टम को समझाने के लिए मुझे 90 मिनट्स लगेंगे।
तो 3 सीक्रेट्स तो हम बात कर लिए, 3 सीक्रेट्स ऑफ रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसिंग. नाउ लेट अस सी माई जर्नी. तो सीक्रेट 1 के 4 कंपोनेंट्स है. लीडरशिप ग्रोथ कैसे होता है? जब आप डिफरेंशिएट करते हो खुद को, रेजिलियंट बनाते हो खुद को, इन्फ्लुएंस करते हो विद दैट रेजिलियंटनेस, क्रेडिबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है. एंड देन प्रोमिनेंस. You keep yourself prominent despite you explain everything to everybody, you train people, you give your secret to everybody, still there is enough in you that makes you different and prominent, right? So how did I do? So राजस्थान में मुझे 2008 में जब मैं वो छोटे से कंपनी को छोड़ के बड़े कंपनी में गई, then I was recommended to that company. अगर मैं वहां पे अप्लाई करती तो शायद नहीं मिलता, बट आई अप्लाइड and those people, those 2 senior officers, those were there, they recommended my case, so I got recruited. And the first assignment that I got was to enumerate 44 lakh women in 2 months in Rajasthan. अब इसमें 2500 volunteers each day थे, जो 30 women per person every day. This is 75,000 women per day वो cover करते थे, right? So we had taken 12,000 volunteers. Out of that 2,500 every day the 12,000 volunteers in all, right? Everybody was not there for all entire 2 months time, so that is why we had to take 12,000 volunteers. We had to source 12,000 volunteers, उनको लेके आके train करना पड़ा था, and how they will be spread out across 250 camps in 29 districts of Rajasthan. ये मेरा पहला असाइनमेंट था, एंड दिस वाज 44 लाख वुमेन को कवर कर लिए थे हम विद इन 2 months टाइम. सो दिस वाज द फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट दैट आई हैड, एंड आई डिडंट हैव दिस एक्सपीरियंस बिफोर एंड, right? So this was what the first thing was. So my impression was established, right? And the second, after this, I got one project in Meghalaya where CSC centers were to be established. So in all the 7 districts there were 239 kiosk centers were to be established. Each kiosk center के लिए business plan बनाना था. उससे पैन कार्ड अगर बना दे तो 10 रुपीज, पासपोर्ट अगर बना दे तो ऐसे करके 5,000 to 10,000 each kiosk owner अर्न करे तभी जाके वो कियोस्क चले ना. सो दिस वाज द बिजनेस प्लान आई हैड टू मेक, एंड उसके लिए जो भी जिससे भी हमको बात करनी थी, बैंक से बात करनी थी, उनका काम करना था, उनके जेरोक्स करना था, उनका टाइपिंग करना था, वो काम करना था, आधार कार्ड प्रिंट करना था, और किसी को जमीन का कुछ निकालना था, लैमिनेशन करना था, टैक्सी बुकिंग करना था, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी निकालना था. सो ईच काम के लिए लोग पहले रिमोटली शिलोंग जाते थे, राइट? शिलोंग मेघालय का कैपिटल है जहाँ पे सर्वर है और वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो लोगों को वहां तक जाना पड़ता था. अब ये सीएससी जैसे ही सेट कर दिए, ये सीएससी थे नेशनल ई गवर्नेंस जो प्रोग्राम हमारे हैं उसके अंदर में थी, एंड उन लोगों को फिर जाना नहीं पड़ा ना. तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कनेक्टिविटी, डेटा कनेक्टिविटी. और मेघालय अगर आप जानते हो तो ये इरेगुलर टेरेन है, जिसकी वजह से माउंटेन्स हैं, कभी वैली है, इसके लिए जो सिग्नल्स है वो सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, मतलब वो पकड़ नहीं रहा था अगर ब्रॉडबैंड लगाए तो. सो व्हाट आई डिड वाज I spoke to telephone department, national informatics centers, and then we found out कि डेटा कार्ड दे देने से होगा, और कहीं कहीं पे डेटा कार्ड का सिग्नल भी बहुत फीबल है तो वहां पे वीसेट एस्टेब्लिश करेंगे. अब ये कैसे पता चला? तो I was talking to some people in the telephone department, ब्रॉडबैंड से होगा ही नहीं, बोल दिया. एवरीबडी न्यू कि वो अगर वहां पे माउंटेन का शेडो एरिया में वो आ जाता है तो नहीं होता है. सो दैट डेटा कार्ड वाज व्हाट वी वर यूजिंग इन आवर ऑफिस. सो आई सजेस्टेड डेटा कार्ड. 125 डेटा कार्ड we had distributed, and that was the first time that anybody saw that many number of data card distribution in Meghalaya. और they were मुझे बड़े curiously देखते थे कि ये इसके दिमाग में कैसे आया. भाई यही सॉल्यूशन है तो इसीलिए आया. एंड देन वीसेट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो सैटेलाइट सिग्नल को कैप्चर करने के लिए क्या था? वीसेट था. सो दैट इज व्हाट आई एस्टैब्लिश इन
Meghalaya. Then the थर्ड was बांधवगढ़ था एक. दिस वाज ए फूड स्कैर्स पॉकेट, जहां पे खाने के लिए लोगों को 3 महीने का ग्रेन होता था, बाकी के लिए दे वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट. ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व था, फॉरेस्ट एरिया था, एंड देयर वाज नो फेंस अराउंड दैट टाइगर रिजर्व. तो लोगों को अपना लाइवलीहुड कलेक्ट करने के लिए, मतलब खाने पीने का सामान कलेक्ट करने के लिए जंगल में जाना पड़ता था. एंड विदाउट फेंस तो किसी को पता नहीं चलेगा ना कि लिमिट कहाँ पे है. ना इंसान को पता चलेगा अंदर जाने के लिए, ना ही बाघ को पता चलेगा कि यहाँ पे फिनिश होता है. तो आमने सामने हो गए तो फिर टाइगर किल करता था और बहुत सारे लोगों की जान जाती थी. तो इसीलिए हमको ये टास्क मिला था कि टू एस्टैब्लिश अल्टरनेटिव लाइवलीहुड. तो मैं यहाँ पे क्यों इसीलिए गई क्योंकि और कोई नहीं जाता था. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस, और जिसको भी जाना होता था दैट वन हैज टू लिव विद इन दो जंगल में. अगर आप देख रहे हो ये पहला पिक्चर में, ये मैं हूँ एंड जंगल है. आई वॉज लिविंग इन देयर. अगर आप नहीं रहो तो उन लोगों को वहां से लेके ब्लॉक लेवल तक जाना बड़ा मुश्किल था. तो इनिशियली 2-3 इयर्स मुझे वहां पे लोगों को बाहर निकालने में कि आप ब्लॉक तक जाओ, वहां पे ट्रेनिंग हो जाएगी, आपकी अर्बन सेंटर तक जाओ, वहां पे ट्रेनिंग हो जाएगी, ये बोलते रहना पड़ा. राइट. सो दैट इज व्हाई आई हैड टू बी देयर. एंड विद इन 4 इयर्स क्या हुआ, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इफ आई कैन ट्रेन पीपल, ये अगर मैंने वहां पे 500 लेडीज को, यहाँ पे अगर ये फोटो अगर आप देख रहे हैं, दिस इज इन 2 क्लस्टर वी हैड अरेंज्ड 500 ladies, and they came into a community based organization which we call as a SSG Federation, in which there was one account, बैंक अकाउंट होता था. उस बैंक अकाउंट में they could generate 36 lakh of per person. ये बहुत कम एरिया में होता है, बहुत कम होता है. What I did, I only did the hand holding. राइट. लोगों को आइडेंटिफाई किया ये दोनों में, और इनका बिठा के जो मास्टरमाइंड बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट आई डिड. उस टाइम में बैठ के कि करना क्या है, ये डिसीजन लेते थे, प्रॉब्लम क्या है एंड सॉल्यूशन क्या है ये सोचते थे, उसके लिए पैसे कितने चाहिए वो सोचते थे. वो अपना ही पैसा हम जो जनरेट करते थे. ऑफ कोर्स इट वाज ए प्रोजेक्ट. उस प्रोजेक्ट में कुछ पैसे थे जो लोगों के हेल्प के लिए दिए जाते थे. हमारे पास चॉइसेस थे कि हम उसको या तो उनको दान में दे देते और खर्चा कर देते, रिकवर नहीं करते, या फिर हम उनको लोन पे देते, उनको अकाउंटेबल बनाते, एंड देन वो जो पैसा वापस आता इंटरेस्ट के साथ, वो ये उनकी इनकम होती. कुछ तो कैपिटल है, कुछ इनकम है. हमने सेकेंड चॉइस लिया. सो द सेकेंड चॉइस में क्या हुआ, उनके पास एक पर्पस बना, पैसा खर्च नहीं हो गया, तो पैसा तो हमेशा ही रहा. अगर ये हैबिट उनमें डाल दिया गया तो ये पैसा तो हमेशा ही रहा. उनके पास कैपिटल बना, और हर एक के पास, हर एक एसएचजी हमने बनाया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था 28, जिसमें 10-10, 11-11 महिलाएं थी. राइट. छोटे छोटे ग्रुप में भी बनाए थे. उनके पास एक बॉक्स भी होता था जहां पे उनके पॉकेट मनी भी सेव होते थे कि इमरजेंसी, कुछ इमीडिएट इमरजेंसी पड़ा तो वहां पे 1000 से 5000 रुपए वहां पे रहते थे जो वो यूज करते थे, और उसको भी मैनेज करने की जरूरत पड़ती थी. कोई भी ले गए, दिस वाज छोटा मनी, छोटा पैसा. किसी को 500 की जरूरत पड़ी आज, 2 दिन बाद लौटाएंगे, तो वो 2% पे लौटाएंगे, तो 2% 1 महीने का दे भी दिया तो उनको 10 रुपए लौटाना था. राइट. सो इस तरह से 500 लेके गए, 510 लौटाए, तो इसी तरह से कॉर्पस बना रहा. राइट. ये पैसा रोटेट होते रहा. सो दिस वाज समथिंग इनोवेटिव. आपने हैबिट बिल्ड किया किसी का, और इसी दौरान हमने एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे, पहले तो सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन उनको सिखाया, मैं सीख के आई, इनको सिखाया. सेकेंड में हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिखाया, लाइक से द किचन गार्डन एंड मल्टीपल क्रॉप्स इन वन फील्ड. तो एक क्रॉप अगर खराब हो गया तो भी बाकी सारे क्रॉप से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी तो आएंगे. देन दी थर्ड थिंग हमने सिखाया कि मस्टर्ड कल्टीवेशन. इनका धान के बाद, इट वाज ए राइस बेल्ट, तो धान के बाद विंटर में कोई क्रॉप नहीं होते थे, बहुत कम व्हीट होते थे,
So then we introduced mustard, hybrid mustard, जिसमें कि हर एक प्लांट में 5 किलोज होते थे, up to 5 kilos. So the प्रोडक्शन क्या हुआ इनके पास, हर एक के पास पर एकड़ एस्टिमेट ऐसे था कि 12 क्विंटल टू 24 क्विंटल प्रोडक्शन आया. सो दे ब्रोक मध्य प्रदेश रिकॉर्ड इन मस्टर्ड कल्टीवेशन. ये भी उन्होंने कर दिया. यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे मुश्किलों के बीच रास्ता भेदने की जुगत, जब एमजी नरेगा में काम उनको बंद हो गया तो उन्होंने मस्टर्ड कल्टीवेशन करके अपने पास कैश जनरेट किया. ये था उनका. Then because of this effort they were felicitated by the Gujarat Chief Minister, the then Gujarat Chief Minister. ये अगर आप देख रहे हो डेट, ये 12 सितंबर 2013 को था. एंड the then Chief Minister was Mr. नरेंद्र मोदी, वो जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं. उन्होंने इनका रिकॉग्निशन किया, इनको अवार्ड दिया 50,000 का, राइट. एंड हियर ये पूरे लेफ्ट में अगर देख रहे हैं, इनको आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने इनको प्राइज दिया है. द प्रोजेक्ट वाज बाय आरबीएस, स्पॉन्सर्ड बाय आरबीएस, ये पूरा प्रोजेक्ट तो उन्होंने ये अरेंज किया था. एंड द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, he chose to give the award himself to this lady. देन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से अवार्ड मिला एक और फार्मर को. देन देवती बाई इज अनदर लेडी. ये पूरे जो काम हमने किया विद इन दिस 4 years दे गॉट 17 awards, राइट. एंड ये उनके अवार्ड मिले, ये मेरे अवार्ड नहीं थे. These community ladies, they got 17 awards at the district level, state level and national level, right. And Devti Bai, she won this ideal woman award by CII, Confederation of Indian Industries. ये 1.5 lakhs का award था. And she was felicitated by the then industry minister Mr. Anand Sharma. So then what I did was I was given the charge of the HR in this company. And the company won 2 awards for which I had written the award का जो भी documents होता है. I got 2 awards also myself because of my contribution to the company. My work in Rajasthan, Meghalaya and Bandhavgarh, many awards. And I was sponsored a study trip to Canada also. That is what I did. And here this was, I'm speaking in a seminar out there, and this was an outing out there. So that was about secret one which I had done. How I never had this agriculture background, this HR background, this technical background, nothing. Those were only out of common sense, right? So that was my journey of resourcefulness. Then secret 2, how to succeed and achieve your goals despite organization related struggles. So मुझे क्या कोई struggle नहीं आए? The first struggle was वो 2008 में जो कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन द कंपनी कोलैप्स्ड इन 2010. व्हाट आई हैड टू डू, I had to take jump in the sister company. Then क्या हुआ, I, despite my work in Rajasthan and Meghalaya and Bandhavgarh, I was sidelined for promotion twice, right? And 2010 and 2015. Wrong appraisal, I like say it, whatever work I did, it required a, like say top level of discipline, right? So I didn't think of anything else, like say this problem, that problem. I didn't take any excuse to do this work. Once assigned of this work, I did that work, no matter what, and I found solution to every problem.
So that was too much discipline for my management, and they इसीलिए वो 2009 में they were saying कि you are too disciplined to be human. So then मैंने वहां पे बोला कि मेरे टीम में भी 80 लोग हैं, दूसरे की टीम में भी 80 लोग हैं, मेरे टीम से लोग जाते नहीं, उस टीम में लोग टिकते नहीं. So अगर मैं इनह्यूमन होती तो मेरे टीम में लोग रुकते क्या और काम करते. सो आई वाज नोन एज द पर्सन हु होल्ड द कंट्रोल. मैं कोई बहुत बड़ी वहां पे थी नहीं, जस्ट आई वाज एन असिस्टेंट मैनेजर, जो एंट्री लेवल मैनेजर जो होता है, दैट इज व्हाट आई वाज इन 2011 2008 सॉरी. But still I was known as a person uh, who did the most, and ऐसे लोग समझते थे कि I can do, I can deliver. So that also required too much of. I am from Orissa, और कभी मेघालय जा रही हूँ, कभी राजस्थान जा रही हूँ, कभी मध्य प्रदेश जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ. So it all required some kind of dedication and discipline, right? Then 2009 में I was in मेघालय. वहां पे भी मुझे despite being known as the person who can control everything, who can move people, who can contribute most to the team's goals, still I was not given budget. लोन एप्लीकेशन वहां पे होते थे लोगों का, जो उनको सैंक्शन करने होते थे, तो जिस किसी को भी मैंने रिकमेंड किया वो अप्रूव नहीं हुआ. सो आई अलाउड अदर पर्सन टू मेक द अप्रूवल. मेरे अप्रूवल मैं जब तक वहां पे थी, दे वर नॉट बीइंग अप्रूव्ड बाय माय बॉस देयर. एंड 2016 में द सेम थिंग हैपेंड. लाइक आई वाज इन झारखंड, एंड बजट नहीं दो तो काम नहीं कर पाओगे, राइट? That this was the principle they adopted against me. ये तंग करने के तरीके होते हैं when you are doing everything. So I'll show you one thing. And in Meghalaya also, I was taken after some time. I was taken out of operation. तो जब बजट नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगी, तो इसीलिए मुझे ऑपरेशन से भी निकाल दिया. तो देन आई आउटलाइन इको टूरिज्म, जो अब होता है. इतने सालों बाद वहां पे इको टूरिज्म अभी होता है. पूरे नॉर्थ ईस्ट में इको टूरिज्म होता है. इको टूरिज्म क्या? नेचुरल ब्यूटी. नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कुछ डेवलपमेंट काम करोगे तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लगेगा. इको टूरिज्म ऑब्वियस है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी तो वहां पे ऑलरेडी है, और लोग जो है दे आर एकस्टम टू दिस, लाइक से दिस फॉरेन टूरिस्ट पीपल बहुत ज्यादा जाते हैं ना. चेरापूंजी आप जानते हो. सो पीपल जाते हैं, उन लोगों को आदत है टूरिस्ट की. सो इको टूरिज्म वाज ऑब्वियस. सो आई outlined the ecotourism policy also for that company. And when I was the HR head, I also incentivized the grassroots workers. हमेशा ही कंपनी में क्या होता है, हमेशा ही मेन जो मैनेजर होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट लेवल होता है, उन्हीं को ही प्रमोशन मिलता है, उन्हीं को ही सैलरी हाइक मिलता है. ग्रासरूट वर्कर को क्या मिलता है? सो हियर आई पुट द इंसेंटिव, और इसी के लिए ही मुझे फिर से बोले कि यू आर नॉट सुइटेबल फॉर दिस HR पोजीशन, क्योंकि आप हमेशा ही फेवर करते हो ग्रासरूट वर्कर को. वहां वो थोड़े ही कहीं होता है. दे आर सपोज टू बी इन देयर विलेज, दे आर सपोज टू बी डूइंग दैट मिनिमम वर्क. भाई बिना उनके आप काम ही नहीं कर सकते. एंड यू डोंट इवन कंसिडर देम फॉर प्रमोशन. प्रमोशन का तो छोड़ो, आप सैलरी हाइक भी नहीं दोगे. इन्फ्लेशन तो उनके लिए भी हो रहा है, हमारे लिए भी हो रहा है ना. तो ये कैसे होगा? सो दिस इज व्हाट आई पुट फॉरवर्ड माय आइडिया. तुम मुझे यहाँ पे रखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चाहे नहीं दो, दिस इज व्हाट आई वुड डू. एंड दे वर सेइंग हमारे पास 40 टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, इंसेंटिव कैसे डिजाइन करेंगे? मैं बोली कि बिकॉज आई राइट द एनुअल रिपोर्ट काइंड ऑफ थिंग. I was doing that also, right? So if I do write about these projects, I know the projects. I know who does what work gets done at which level.
तो ये 40 काइंड्स ऑफ इंसेंटिव डिजाइन मैं कर दूंगी। दैट इज व्हाट आई डिड। आपको ये टाइप के प्रोजेक्ट्स, आपका काम तो यही होगा। You can give this incentive to these people. Unless you give, these people will not stay. फिर किसी और को ले आओगे और वो उतना काम करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं। Why to bother these people? Why these people should suffer because they have worked with you? तो ये मैंने किया। Then after that I was given a dead watershed project in झारखंड। अब मैं झारखंड में गई। ये झारखंड वाला है एरिया। यहाँ पे ये वाटरशेड था। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए ये टिपिकल ऑफ झारखंड। और ये वाटरशेड का एक चेक डैम है। सॉरी, लेट मी शेयर इट अगेन। सॉरी अबाउट दैट। ये है चेक डैम जहाँ पे पानी को रोका जाता है। और वो जो एरिया था, खूंटी डिस्ट्रिक्ट था, दैट वाज ए नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया। तो वहाँ पे आई वाज अलोन। पूरे एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे अलावा कोई नहीं था। नॉट इवन एन ऑफिस असिस्टेंट। वहाँ पे कैसे काम करते थे? यू नो, नक्सलाइट्स जो होते हैं ना, उनको भी मैंने कुछ सिखाए कि आप लोग अपने हक के लिए जो लड़ते हो, कौन सा हक, आपको थोड़े ही पता है कि आपका हक क्या है। आपका लैंड छीना जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो बेच दोगे ना। अगर कोई आए आपको 5 लाख मांगने आ जाए तो आप तो अपना जमीन बेच दोगे। फिर उसके बाद कहाँ जाओगे, आपने सोचा ही नहीं। तो आप अपने हक के बारे में कैसे? जमीन जब बेच दी, जमीन किसी और की हो गई, राइट? फिर किस बात का हक? अगर आपका हक ही नहीं होगा तो यहाँ पे आप कोई डिसीजन मेकिंग भी तो नहीं कर सकते ना। जमीन जब आपकी नहीं है तो आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे, राइट? ये सिखाया। पर ना, अमंग्स अदर थिंग्स ये भी सिखाया उनको। तो मेरे मीटिंग में हमेशा नक्सल भी थे। और वो पूरे एरिया में आज भी अगर आप खूंटी जाओगे तो कम्युनिकेशन इतना अच्छा है नहीं। सुबह 6 बजे आपकी पहली बस चलती है, मिस कर दी तो फिर आपको जाने में पता नहीं, ऑटो आपको रिजर्व करके जाना पड़ेगा, राइट? तो उस एरिया में काम किया विदाउट एनी डेंजर। जब बंद भी हो रहा है तो मुझे पता नहीं, क्योंकि लोगों के लिफ्ट ले लेके मैं जा रही हूँ। एंड बिकॉज पीपल नो, छोटा सा एरिया है ना, लोगों को पता है कि मैं उनके लिए काम करती हूँ। जो भी मैं समझा रही हूँ उन्हीं के भले के लिए समझा रही हूँ। तो मुझे कोई कभी डेंजर महसूस नहीं हुआ। सो हाउ थिंकिंग पॉजिटिव हेल्प्स। तो मैंने बाद में सोचा कि ये कैसे होता है कि मैं अपने बारे में सीख गई, मैं दूसरों को सिखाऊं तो कैसे होता है। तो मेरा क्या गोल है? माई गोल इज टू बिल्ड ए ग्लोबल टीम, राइट? तो ये ग्लोबल टीम का आउटलाइन मेरे दिमाग में शुरू से नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि जहां पे भी मैं काम कर रही हूँ वहां पे टीम बनाऊंगी। तो ऐसे मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम किया। आपने अगर देखा हो, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये एक काम तो नहीं था, एक ही टाइप का काम तो नहीं था, ये बहुत सारे टाइप के काम है, राइट? तो वो टीम बिल्डिंग, कोई भी काम है उसको हम कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई तो करेगा ना। कोई अगर करेगा तो हम क्यों नहीं? तो ये मुझे नहीं आता, वो मुझे नहीं आता, आप बोल सकते हैं। नहीं आता है तो कहीं से आप रिसोर्स लेके लिवरेज करके वो कर सकते हैं जो हमने किया, राइट? अगर कर सकते हैं तो कोई भी आप काम कर सकते हैं। तो काम करते हुए हमने स्किल डेवलप किया। जब स्किल डेवलप हो गए तो कॉन्फिडेंस आ गया। जो काम किया उसके लिए भी कॉन्फिडेंस आया, जो काम नहीं किया वो भी कर पाएंगे उसका भी कॉन्फिडेंस आया, राइट? जब कॉन्फिडेंस आया तो थोड़ा सा रिस्क हम लिए। जो लास्ट थिंग मैंने बताया ना, बांधवगढ़ में मैंने SRI किया, सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन किया। फिर हमने इनटेक क्या बोलते हैं, फार्मिंग की, जिसमें मल्टीपल क्रॉप्स होते हैं, वो किया। थर्ड में हमने मस्टर्ड कल्टीवेशन किया जिसमें हमने रिकॉर्ड तोड़ा। चौथा हमने क्या किया? चौथा हमने हर्बल कल्टीवेशन किया। हर्बल कल्टीवेशन के बारे में हमको कुछ पता नहीं था और हमने क्या किया, सफेद मूसली
तुलसी और अश्वगंधा किया, तो इंटरनेट में है, आप अगर पढ़ना चाहें तो। खेती तो वैसे ही होती है, खेती का प्रोसेस भी वहां पे दिया हुआ है। और उस क्लाइमेट में होता है कि नहीं, ये जानने के लिए हम एक्सपोजर पे गए। तो हमारा एक्सपोजर कहाँ था? छत्तीसगढ़, जो बगल वाला है, जस्ट विद इन 200-300 किलोमीटर के अंदर है। तो उतने में, उस क्लाइमेट में हमारे में भी हो जाएगा, ये हमको कॉन्फिडेंस आया। सो वी टुक रिस्क। 1 एकड़ के लिए रिस्क लिया था, 5 लाख इन्वेस्ट करके। रिस्क लेने से क्या होता है आपको? आपका सक्सेस परसेंटेज बढ़ जाता है, राइट? सक्सेस परसेंटेज जैसे ही बढ़ जाता है, तो आप सक्सेस को बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी एक्शन लेते हैं। कितना बढ़ता है आपका सक्सेस परसेंटेज? 50% बढ़ता है, राइट? यानी आप 2 काम करो तो 1 काम में सक्सेस होने की चांस है। तो यानी आप 100 काम करो तो 50 में आपका सक्सेस हो जाएगा। तो जो आपका गोल है ना, उसको 50 काम नहीं लगते हैं, उससे कम लगते हैं, आपका गोल सक्सेस हो जाता है। तो जल्दी जल्दी आप एक्शन लोगे ना, जल्दी एक्शन लोगे तो आपका माइलस्टोन जल्दी बनेंगे। माइलस्टोन्स मतलब छोटा छोटा सक्सेस। जैसे हमने ये 1 2 3 करके सक्सेस बनाया। हम डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड में थे। वो लेडीज जिनका मैंने फोटो दिखाया, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड, सोचिए कि वो घूंघट में थी। कहाँ घूंघट और कहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड की मेंबर बनी वो। ये माइलस्टोन नहीं था? और जो एरिया बांधावड़ में हमने काम किया, ये रिकॉर्ड तोड़ा मस्टर्ड कल्टीवेशन का, वो पिलग्रिमेज एरिया बना, एग्रीकल्चर पिलग्रिमेज एरिया। कोई भी आएगा तो वहां पे जाएगा देखने के लिए कि वहां पे क्या हो रहा है। और जहां पे फेलियर हुआ उसको हमने लर्निंग समझ लिया, ठीक है? और ये मेरे ऐसे करके आपके जो छोटे छोटे विक्ट्रीज होते हैं, ऐसे आपके पर्सनल विक्ट्रीज सब बनते जाते हैं। तो आप सक्सेसफुल होते जाते हैं ना, आप मोटिवेटेड होते रहते हैं कि हम कर सकते हैं इसको, राइट? सीक्रेट 3 पे आते हैं। तो इतने कितने सारे काम करेंगे, ये जो इतने सारे हमने काम किए। द थर्ड सीक्रेट इज अबाउट बिग सीक्रेट टू स्टे रिलेवेंट विदाउट फीलिंग बर्नट आउट। इतने सारे काम करेंगे, पिछले 12 साल में इतने सारे काम करती है, तो कब तक करते रहेंगे? ये आपके दिमाग में आएगा ना। रिसोर्सफुलनेस मीन्स यू हैव टू बी रिसोर्सफुल। लोग सीखते रहेंगे आपसे एंड दे आउटग्रो यू। आपको आपको छोड़ के भी चले जा सकते हैं, आपकी रिलेवेंस भी हटा सकते हैं, बट कितने कहाँ तक सीखेंगे जिससे आप रिलेवेंट रहेंगे, राइट? तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मेरे एग्जाम्पल, कि यहाँ से फिर मैंने सिक्किम में काम किया। सिक्किम, राइट? वहां पे मैंने 11 एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए। एक एफपीओ में 1000 फार्मर होते हैं। ये कैसे बनाया, इसका तो एक्सपीरियंस पहले से नहीं था। तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर ये था कि 2005 से सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक स्टेट है। तो देन फार्मर्स वर मोबिलाइज्ड, उनके पास एक लिस्ट थी, तो उन फार्मर को ढूंढा और उनको एक साथ रजिस्टर करवा दिया। एक ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? ऑर्गेनाइजेशन बनता है कि अगर आप लोगों को मोबिलाइज करके उनको एक ऑब्जेक्टिव देते हैं कि क्यों बना रहे हैं ये इसलिए बना रहे हैं कि अगर बहुत सारे फार्मर का रिक्वायरमेंट अगर इकट्ठा होगा तो बल्क परचेस होगा। बल्क परचेस होने से उनको डिस्काउंट मिलेगा, राइट? अकेले अगर जाके 4-5 किलो अगर खरीदें तो उसमें जितना एमआरपी है वही मिलता है। अगर आप 400-500 क्विंटल खरीद रहे हैं तो बल्क परचेस हुआ, जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो ये डिस्काउंट अल्टीमेटली फार्मर को पास ऑन होते हैं ना। हर एक किलो में अगर कुछ वो 300 रुपए में खरीद रहे हैं, वो 250 रुपए में मिले या 200 रुपए में मिले, तो इट इज ए ह्यूज रेस्पाइट फॉर द फार्मर ना, वो होता है। प्लस अगर कोई बायर आए, उनका प्रोडक्शन जो होता है, ग्रेन होता है, वेजिटेबल होता है, ऑयल सीड होता है, कुछ भी वो प्रोड्यूस करते हैं, अगर वॉल्यूम में होगा
तो ये बार्गेन कर पाएंगे ना प्राइस पे? बोलेंगे कि आपको इकट्ठा इतना मिल रहा है तो आप हमको यूजुअली, अगर वो मंडी प्राइस अगर 10 रुपए है तो आप हमको 15 रुपए में दे सकते हो, क्योंकि आपको इकट्ठा मिल जा रहा है। ये सारे को सोर्स करने के लिए आपको अलग अलग जगह तो नहीं जाना पड़ रहा है, तो वो आराम से दे सकते हैं, राइट? तो ये परचेस, ये फायदे होते हैं फार्मर को, इसीलिए ये अगर आप उनको समझा दिए तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो आते हैं। तीसरा क्या होता है, ये फार्मर अपनी कंपनी बना के इस कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। शेयर कब? आप और हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर है क्या? कहीं पे शेयर खरीद लिए तो हम उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट हम डिसीजन मेकर तो नहीं हो पाते। तो ये फार्मर जो है, इनको चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि शेयर होल्डर इनका फिक्स है, शेयर होल्डिंग इनका फिक्स है। एक फार्मर मतलब 1 यूनिट ऑफ शेयर। तो ये शेयर की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी, फार्मर की डिसीजन मेकिंग उसमें आते रहेगा। उसके बाद ये जब बिजनेस करते रहेंगे तो ये उस शेयर का वैल्यू बढ़ते रहेगा। कोई और आके खरीदेगा 1 साल बाद, तो ये पहले जो खरीदे थे 1000 रुपीज में, ये 1500 रुपए में उसको देंगे, राइट? इस तरह से भी बढ़ता है इनका, तो फार्मर एम्पावरमेंट भी होता है। ये मेरा पहले एक्सपीरियंस था गया, ये पढ़ के सुने और समझाए उनको, लोगों से बातचीत किए तो समझ में आया, तो ये कर दिया, राइट? तो इसके लिए नया कुछ करना नहीं पड़ा। जो आपका पहले का एक्सपीरियंस होता है ना, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वी कैन डू फर्दर सिमिलर थिंग्स, वी कैन डू फर्दर। आप इंटीग्रेट करो उसको, इसी को डेप्थ बोलते हैं। Instead of spreading yourself into so many areas, what we can do is we can um, start compiling all those experiences into useful things in the same organization into a different dimension. सेम ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एक्चुअली दिस वेर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो मैं झारखंड लास्ट थी, उसके बाद छोड़ के मैं दिल्ली आई, तो फ्रॉम दिल्ली मैं सिक्किम ऑपरेट करती थी। नाउ ये जब 11 बन गए, उसके बाद मुझे लगा कि अब हर एक स्टेट में कुछ कुछ काम होता है, करते हैं। तो नाउ आई शुड डू समथिंग इन ए प्रोग्राम मैनर। प्रोग्राम में क्या होता है, आप एक काम पकड़ते हैं एंड इन ऑल द स्टेट करते हैं, मतलब वाइड स्प्रेड करते हैं एक ही काम को, तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। तो सेम एक्सपीरियंस मुझे ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक्सपीरियंस था, मुझे और भी दूसरे डेवलपमेंट काम करने के एक्सपीरियंस थे। तो यहाँ पे जो सेकेंड में जो माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन में मैंने ज्वाइन किया, तो आई डिडंट हैव एनी माइक्रो फाइनेंस और बैकग्राउंड, बट बांधवगढ़ में मैंने लोन दिया था, राइट? छोटा लोन दिया था और लोन रिकवर किया था। वो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि मुझे पता था वो, तो वो एक्सपीरियंस लगा के मैं इस को धीरे धीरे करके बढ़ाई, और दिस जॉब वाज बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, राइट? तो इसी तरह से हम कर सकते हैं, राइट? हमारे जो ऑलरेडी अचीव किया हुआ होता है, उसको कैसे हम फर्दर ग्रो करवा सकते हैं, दैट इज व्हाट वी थिंक, एंड एज वी ग्रो वी शुड बी एबल टू डू दैट, राइट? हमको वो पता करना होता है, वो स्किल, दैट इज अ स्किल, हाउ टू बिल्ड अपॉन योर प्रायर एक्सपीरियंस। ये तो सबके पास होता है, हम धीरे धीरे करके सीखते हैं, राइट? हालांकि जिंदगी रोज नया कुछ खड़ा करती है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस लेके फाइट करते हैं, राइट? तो ऐसे ही होता है वर्क प्लेस में, दिस इज द सेम थिंग। एंड हियर ये जो प्रोग्राम मैंने लिया, ये अफोर्डेबल हाउसिंग पे लिया, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग को हम होलिस्टिक बना रहे हैं। ये घर इसको हम बना रहे हैं सोलर एफिशिएंट, डिजास्टर रेजिलिएंट, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल हाउसिंग टू EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कितने लोग हैं वीकर सेक्शन में इंडिया के? 37%। तो अब 37% ऑफ 135 करोड़ क्या होता है? वन थर्ड,
1/3 भी पकड़ लेते हैं तो वो 35 करोड़ के करीब होता है, राइट? इतने सारे लोगों का लाइफ इफेक्टेड होगा अगर मैं जो कर रही हूँ वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो। राइट नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन उड़ीसा एंड हियर आई एम हियर, आई एम इन द सेम मीटिंग एज द फाइनेंस सेक्रेटरी। उनको समझा रहे हैं कि हमने काम किया, क्या किया, और जो डिजास्टर्स होते हैं, उड़ीसा एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है, वहां पे अगर घर नहीं होगा लोगों का तो वो कहाँ से बेस करेंगे, मतलब कहाँ रहेंगे, रहेंगे नहीं तो फिर उनका इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, वो कैसे कुछ आगे बढ़ेंगे, राइट? कितना भी आप प्रोग्राम कर दो, घर नहीं होगा तो बंदा कहाँ रहेगा। हाउसिंग इज एन इनकम एनेबलर है, ठीक है, ये उनको समझाया उसमें। और जो मेरे मेंटर है वो बेसिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें मैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट की थी, जो एक्सपीरियंस मेरा वहां था, वो एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन के भी फाउंडर हैं। तो उन्होंने मुझे ये मेल लिखा जब मैंने उनको बताया कि अभी मैं अफोर्डेबल हाउसिंग और सोलर पे काम कर रही हूँ। अभी अभी हमारा COP26 भी हुआ, आपने सुना होगा, तो वहां पे कार्बन फुटप्रिंट घटाने की बात हो रही है। बाय 2070 द नेट जेन, मतलब टोटल जो नेट कार्बन फुटप्रिंट है वो 0 होना है इंडिया के लिए भी, वो है मिशन पे हमने किया। तो इतने सारे मिशन पे मैं काम 2 साल पहले से काम शुरू कर दी थी। ये जब मैंने उनको बताया तो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी, और उन्होंने ये मेल लिखा। जब मुझे ये मेल मिला, आई फेल्ट लाइक आई वॉन नोबेल प्राइज, आप जानते हैं। सो आई वॉज सो हैप्पी, राइट? हम क्या कर पाएंगे आगे जाके, उससे कोई मतलब थोड़े ही रह गया। हम अगर करते रहेंगे, देन व्हाट ही कॉल्स एज इनोवेशंस फॉर द मिलियंस। अगर मैंने वहां पे किया और उनको लग रहा है कि ये हो हो गया, मतलब ऐसे मैं सॉल्यूशंस निकाल रही हूँ, देन गोल अचीव तो हो गया ना, कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसका मैंने एक फॉर्मुलेशन किया कि आप सक्सेस कैसे देख सकते हैं, बड़े पैमाने पे सक्सेस कैसे देख सकते हैं। अगर बड़े पैमाने पे अगर आप सक्सेस देखें तो आपको छोटा स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट स्मॉल, छोटे से। आप एक विजन देखो, गोल, और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है। लेकिन जब आप छोटे से स्टार्ट करो ना, जैसे मेरा गोल है कि 37% ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन दे विल हैव अफोर्डेबल हाउसिंग, ऐसा घर होगा जिसको वो अफोर्ड कर पाएंगे और रहने लायक होगा, लिवेबल, हेल्दी, डिजास्टर रेजिलिएंट होगा, ऐसा घर, ये मेरा गोल है। अभी तो हुआ नहीं, सो आई हैव स्टार्टेड स्मॉल। वो देखा मैंने जो अभी दिखता नहीं है, सीइंग ऑफ व्हाट इज इनविजिबल राइट नाउ। एंड हम खुद को एजुकेट करते हैं तभी जाके तो अपलिफ्ट होता है ना सोल, और आप जो है आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। सॉरी, फिर ये जो करते हैं हम, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत आपके जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं वो आते रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके प्रॉब्लम, कि लोगों, इतने सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद लोगों के प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व होते। क्या ये मेरी पहली ड्रीम थी जो मैंने पहली बार देखा, या फिर ये जो ड्रीम है ये मैंने देखा पहले, इसके पहले क्या किसी ने नहीं देखा? देखा, लेकिन देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स कि वो कहाँ से शुरू करेंगे सॉल्व करना, उनको पता नहीं था। सो राइट नाउ दैट इज व्हाट, आप छोटे छोटे करके एकदम शुरू से शुरू करो तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि समझ की, मतलब कोई इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर है, कोई पैसा देता है, कोई टेक्नोलॉजी लाता है, कोई मटेरियल लाता है, कोई पॉलिसी बनाता है, कुछ करता है, एंड ऑल ऑफ देम हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन फील्ड। पैसा अगर कोई देता है और दूसरा अगर वहां पे प्रोवाइडर है, रेगुलेट करता है, देन दैट रेगुलेटर इज आस्किंग कि भाई इसने ये पैसा इतने इंटरेस्ट पे क्यों दिया। अब कौन किसको समझाएगा,
ये इनकी बात समझेगी, वो दूसरा दूसरे की बात समझे। एक दूसरे की बात अगर नहीं समझेंगे तो अल्टीमेटली जो बंदे जो ग्रास रूट पे है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, गरीब जो है, उसको हम कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे ये घर? ये घर उनका नहीं है, उनका नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो आज के आज पैसा नहीं दे सकते। इनको अगर सफिशिएंट टाइम दो, अगर इनका घर बन जाए, देन वो एक की जगह 3 काम करने की सोचेगा ना, इनकम बढ़ाने की सोचेगा। तो ये पहले समझो कि उनको घर क्यों चाहिए, और उनके पास पैसा है चाहे नहीं है, घर तो सबको चाहिए ना। तो घर दो पहले, और घर देने के लिए पहले अपनी समझ ठीक करनी पड़ेगी कि सामने वाला बंदा जो प्रोवाइडर, सप्लाई साइड जो है, एक सप्लाई साइड का पार्टी जो देगा, वहां प्रोवाइड करेगा, वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे यहाँ पे आएगा, वो दूसरे सप्लायर को पता होना चाहिए, राइट? तो मैं अभी वो फैसिलिटेटर का काम कर रही हूँ कि भाई इसका सुनो, उसको समझाओ, उसका सुनो, ये समझाओ, ये काम से शुरू किया है, यही मेन प्रॉब्लम मुझे लगा। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो अभी इसमें एंड थर्ड फोर्थ इसमें क्या है कि आपका वैल्यू, कि आप कहाँ से शुरू करोगे, ये आप देखो। आप एथिक्स एथिक्स पे जाते हो ना, तो वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे? मेरा पर्सनल यहाँ पे क्या टेक है, ऑर्गेनाइजेशन का टेक ये है कि मुझे वो अलाउ करे टू वर्क देयर। मेरा वैल्यू ये है टू कंटिन्यू विद द वर्क, और ये हमारे पास कितना पैसा है इससे मैटर नहीं करता है, हम कैसे पैसा ला के इसको काम को कंटिन्यू रखेंगे, ये मैटर करता है। तो एथिकली ये काम को करना है तो आपको एथिक्स समझना पड़ेगा। आप अगर सोचो, बोलोगे कि हमारा ग्रांट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए हम ये नहीं कर सकते हैं, देन दैट इज बियॉन्ड योर एथिक। तो फिर आप खुद को कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मत बोलो ना, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम फाइटिंग फॉर। उसके बाद देखिए, एसेंशियल स्टेप टू सक्सेस। अब ये इन लोगों की अपनी अपनी मजबूरी है, इनको भाई हेल्प करने पड़ेगा। तो अभी 2-3 दिन पहले ही बहुत सारे लोगों को आप बोलो, ऑर्गेनाइजेशन जो फंडिंग करती हैं, उनके साथ बात करके हमने एक प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन किया है। खाली बोलने से नहीं होता है। हेल्प एवरीबडी टू सक्सीड, हेल्प एवरीबडी टू हेल्प देमसेल्व्स, टेक ए डिसीजन, राइट? वो मैंने लिया। देन आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? मेरा इंस्पिरेशन वहां से आता है जब, जहां से मैंने शुरू किया है टीम बिल्डिंग एक छोटे से लेवल पे, और टीम बिल्डिंग को मैं वहां तक ले जाऊं, इंक्लूडिंग ऑल द पॉलिसी मेकर्स, बैंकर्स, आरबीआई के साथ, वो रेगुलेटर है ना, गवर्नमेंट्स, इन सबको इकट्ठा एक लेवल पे अगर ले आऊं तो ये काम आसान हो सकता है। दिस इज व्हाट माई मोटिवेशन इज, दिस इज ए बिग मोटिवेशन। उसके सामने मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन है टू ट्रेन 1 लाख पीपल इन 139 कंट्रीज। ठीक है, तो वो जो मेरा मिशन है ना, वो मिशन तो छोटा पड़ जाएगा ना मेरा ये गोल के सामने। ये गोल मेरा बर्निंग डिजायर है, और इसको मैं कर दूंगी तो वो मुझे करने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला, राइट? तो ये करने के लिए जो इंस्पिरेशन चाहिए, वो अगर मैं छोटा छोटा काम करूंगी, मैं बहुत बड़ा काम कर सकती हूँ, ऐसा नहीं होगा। ये इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स लगेंगे, इतने सारे लोग लगेंगे, ये सारे लोगों को समझाने का और साथ में ले आने का काम मेरा है। और देन ये सारे लोग पार्टनरशिप पे आएंगे, सिनर्जी इनकी बनेगी तो सक्सेस होगा, राइट? अल्टीमेट विक्ट्री इज दैट। तो इसीलिए मेरा इंस्पिरेशन यहाँ पे जाता है, राइट? गो ग्लोबल। अब इसका दूसरा स्टेज क्या है कि अब जैसे मैंने बताया कि अभी मेरा मिशन, जो सेकंड मिशन है, अगर ये नेशनल लेवल पे अगर ये सक्सेस हो गया, देन माय सेकंड थिंग विल बी व्हाट? मैंने जैसे बोला कि ये
ट्रेनिंग 1 lakh ग्लोबल प्लेयर्स इन 139 कंट्रीज, ये जो बोला है, ये जो एक्सपीरियंस मेरा बनेगा, ये बनेगा ही, ये जो बनेगा, ये मैं किसको सिखाऊंगी तभी तो वो फिर रेप्लिकेट कर पाएंगे, या फिर मैं अकेले ही करूंगी। फॉर दैट आई नीड पीपल, राइट, जो इस तरह से सोच के इस सोच को आगे बढ़ाएंगे, राइट, दूसरे के लिए नहीं। आप स्टक हो ना अपने वर्क प्लेस में, यू आर फीलिंग अनफुलफिल्ड, आप इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आपके पास चैलेंज बहुत बड़ा नहीं है, आप खुद को चैलेंज नहीं कर रहे हो। आप खुद को अगर चैलेंज करोगे और उस रास्ते पे धीरे धीरे चल पड़ोगे, देन लाइफ विल बी एक्साइटिंग। डजेंट मैटर कि आप वहां तक पहुंचे अभी कि नहीं, आप कौन बोलेगा कि आप नहीं पहुंच सकते। आप अगर चल रहे हो, यू विल गेट देयर, ये तो मेरे सारे मेंटर ने बोला है, राइट। मेरे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को लेके मैं आगे भी कर पाऊंगी, ये तो मेरा कन्विक्शन है ही, राइट। मेरे मेंटर्स ने भी बोला है क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही देखा। तो मेरे सबसे पहला मेंटर जो इस लाइन में है, डिजिटल मेंटर, वो विवेक मेहरोत्रा है। और उनके कोर्स में मैं इसलिए गई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट हैं, मैं काफी सारा पढ़ रही थी कि अपने बिग गोल्स को मैं कैसे रियलाइज करूं, राइट। तो उन्होंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला तो मैं इतना सोच रही हूँ किसी के बारे में, किसी गोल के बारे में, तो वो रियलिटी कैसे होगा। तो इनके पास वो सोल्यूशन था, है रादर, तो वो फॉर्मूला। और जब मैं इनके पास गई तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा उन्होंने मुझे कुछ और भी सिखाए कि जो आपने सीखा उसको आप दूसरे को भी सिखा सकते हो। ये जो सीडिंग थी ना, ये सीडिंग उनसे हुई, राइट। तो उनके जो मेंटर थे, विवेक मेहरोत्रा के जो मेंटर थे, वो सिद्धार्थ राजशेखर हैं, आज के सेलिब्रेटेड डिजिटल एजुकेटर हैं, कमाल के सिखाने वाले हैं, और वो तो कोचिंग सिखाते ही हैं, राइट। तो वो आप आपके नीश कैसे आप निकालोगे वो करते हैं। तो नीश की जब बात आई तो सबसे पहले मैंने सोचा कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मैं सिखाऊं लोगों को, कि लोग अपना अपना जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज करें, बहुत ज्यादा करके बर्न आउट नहीं हो जाए, बहुत कम करके अनफुलफिल्ड नहीं हो, ये मैंने सीखा। उसके बाद मैंने देखा कि रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंस, रिसोर्सफुलनेस ही बेसिक है। अगर आप रिसोर्सफुलनेस से नहीं चलते हैं तो आपको अपने बारे में नहीं पता चलता है कि आपके स्किल्स, आपकी यूनिकनेस कैसे है। जब यूनिकनेस ही पता नहीं चलता है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। सो ये है मेरे डिजिटल एजुकेटर। उनका एक कोर्स का जो पहला हिस्सा था, पहला जो माइलस्टोन था, वो मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है। ये है मेरे दूसरे ट्रेनर जो ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर है, उनसे आज ही मैं उनका एक जितने सारे मेरे ट्रेनर्स हैं एक्चुअली, ब्लेयर सिंगर जो रॉबर्ट कियोसाकी के कोच हैं, ये है डीन ग्रेजियोसी, और ये सारे न्यू एज एजुकेटर हैं जो टाइम टू टाइम मेरी ट्रेनिंग करते हैं, राइट। इनके कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है और मेरा इंस्पिरेशन लेवल जो है हाई होते रहता है। तो हमेशा ही खुद को सिखाते रहने की जरूरत है। जैसे हम रोज रामायण, महाभारत, भागवत गीता पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि क्योंकि हमारा जो एनर्जी है वो बुलंदी पर रहे। तो इनसे मैं जब सीखती हूँ तो कुछ ना कुछ नया होता है, मेरा इंस्पिरेशन जो है लगा रहता है। बहुत ही एसेंशियल चीज है कि ये सारों का जो अभी जर्नी है वो एकदम सिंपल स्मूथ ऐसे नहीं है। ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके भी कोचेस हैं, और लाइफ तो स्ट्रगल है ही, रोज ही स्ट्रगल है। आज मैं अरफीन खान, एक और ट्रेनर है, उनको सुन रही थी, उन्होंने बोला मेरा लाइफ बहुत ही सिंपल है क्या? मेरा लाइफ भी स्ट्रगलसम है। तो स्ट्रगल तो हमेशा ही आते रहेगा, बट उसके बावजूद भी अगर आप जो करना चाहो, आपके जो गोल्स हैं, जो आज आप सोच रहे हो ना, वाइल्ड गोल कुछ भी है, आप लिखो तो सही, आप लिखो और उसी पे काम करना शुरू करो, राइट।
तो उससे लाइफ बहुत एक्साइटिंग बनती है। लोग भले ही आपको पागल समझें इनिशियली, वो थोड़े दिनों बाद नहीं समझेंगे, राइट? तो ये मेरे ट्रेनर्स हैं। अभी जैसे मैंने ऑनलाइन शुरू किया ना, अभी 18,000 तो ऑफलाइन थे क्लाइंट्स मेरे। कुछ क्लाइंट्स मेरे ऑनलाइन आए, मैंने टेस्ट किया कि ऑनलाइन में मैं जो कर रही हूँ, जो आपको अभी बता रही हूँ, ये मैं किसी और को 1 to 1 बताऊं तो क्या फायदा उससे होता है। तो ये 3 क्लाइंट्स हैं जिनको रिजल्ट अभी तक मिला है, और उन्होंने लिखा है। जैसे यहाँ पे निकिता हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं कुछ, तो ये अभी हाल ही में वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू किए हैं। प्रवीण सामंत जो है, जिनको 2.5 साल से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अभी अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हुआ है, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट अभी ज्वाइन किए हैं। जब उन्होंने ये लिखा था तभी वो कोशिश कर रहे थे, अभी वहां पे वो हैं, राइट? और ये एक इंटर्न है जो मार्केटिंग इंटर्न है, जिनको मैं मार्केटिंग प्लान सिखा रही थी। अगेन आप बोलेंगे कि ये मार्केटिंग प्लान कहाँ आया, फिर आपके एक्सपीरियंस में तो था नहीं। फिर भी आप देखते हुए, करते हुए सीखते हो ना। प्लान तो प्लान ही होता है, आप चाहे कोई भी प्रोजेक्ट करो, कुछ करो, प्लान होता है, राइट? वो मार्केटिंग प्लान हो, बिजनेस प्लान हो, कुछ भी नाम दे लो। तो वो उनको सिखाया। तो अभी आते हैं कि करिकुलम क्या है मेरे, क्या आप सीखोगे इससे, राइट? ठीक। तो ये मेरा करिकुलम है, लीडरशिप ग्रोथ बंडल, और इसमें मेरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है लीडरशिप ग्रोथ ब्लूप्रिंट, और 5 बोनसेस हैं। 6 कोर्स बंडल है टोटल। इसमें से जो फ्लैगशिप कोर्स है उसमें आपको सिखाया जाएगा इरिप्लेसेबिलिटी कैसे आप हासिल कर सकते हो, सॉट आफ्टर कैसे हो सकते हो, स्टैंड आउट एज ए पर्सन ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि आपके स्किल्स तो डिफरेंट होंगे मेरे से, अल्टीमेट लीडर कैसे हो सकते हो ये। एंड इसके जो डे 1 है वो रीबर्न विथ रिसोर्सफुलनेस, ये आपको लगेगा कि आप हो रहे हो। कोर वैल्यू, सेट प्रायोरिटीज, स्टैंडिंग आउट इन ए क्राउड, then goal setting, then back stories of resourceful influencing, अभी तक आपने क्या किया, जैसे मैंने अभी स्टोरी सुनाई वैसे। then आपके लीडरशिप स्टाइल्स कैसे अनयूजुअल है। then this is ड्रीम गोल सेटिंग में ये भी सिखाया जाएगा। ये मेरा ड्रीम ट्रैकर मैंने बनाया हुआ है कि ये 10 साल का मेरा है, मार्च 28 तक। वैसे नहीं होता है जैसे हमने प्लान किया है, लेकिन धीरे 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 करके होता है। जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो शायद अभी अचीव नहीं हुए हैं, लेकिन किसी भी टाइम अचीव हो सकते हैं, राइट? देन ये लेवल 2 पे, इस पे थोड़ा सा हम असेसमेंट भी करते हैं। एक्शन ओवर एक्सक्यूजेस, ट्रांसफॉर्मेशनल लीजर, यू आर एनफ, नो योर वर्थ, की कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, टेक बेबी स्टेप्स। तो इस पे हम कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं, असेसमेंट भी करते हैं। आप इस एक्सरसाइज को बारी बारी ले सकते हो। फिर लेवल 2 में हमारा मास्टरमाइंड भी होता है, उसमें हम डिस्कस भी कर सकते हैं, उसमें भी आप न्यू इंसाइट ले सकते हो और खुद को एसेस कर सकते हो। एंड कीप योरसेल्फ ऑन द टोज। डे 2 में है गिव अप लिटिल लेटर, belief is a precursor to behaviors, aptitude and perception, resourceful is you and around, and trust building and team acceptance, ये डे 2 में है, बिल्डिंग रेजिलियंस में। और लेवल 2 में सेम हम कुछ और मास्टरमाइंड भी करते हैं, एंड देन उसका असेसमेंट भी करते हैं। स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ द स्टोरी, विजुअलाइज योर सक्सेस, imagine, believe, achieve, take the challenge, rewrite to inspire, clue in contradiction, paint the pathway, and day 3 में resourcefulness towards a desired goal, self-track the learning pattern, innovate and resolve, team game, emotional resilience, steady growth.
और लेवल 2 में अगेन ऑटोमेटेड ग्रोथ हाउस, boss in next level, raise the bar, average can be 2% plus minus proximity, everyday distinction. Day 4 में shifting paradigm, mindset for greener opportunities, find your vision and decide your version, taking action right away, money management talks, take a stand and stand by it, constructive exchange to improve adversity, small actions step to the journey of 1,000 miles, trust in relationships, hands-on before automation. इसके भी लेवल 2 में कुछ हैं जो ट्रिपलेट्स में आपको सिखाया जाएगा अबाउट डीप लर्निंग, सेंसिबिलिटी, वेलनेस, अपग्राफ. देन द 5 बोनसेस विल बी इंटरनल पैटर्न, रीजुमिनेट सेल्फ. इसमें आपको सिखाए जाएंगे आपके थॉट्स के बारे में, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स, माइंडसेट एट वर्क प्लेस, फाइन ट्यूनिंग द गोल. एंड इसके भी लेवल 2 है. इसमें पुल योर ओन स्ट्रिंग्स, एटीट्यूड शिफ्ट, बॉडी कैपेसिटी, एक्सपेक्टेशन अलाइंड, चूज योर ओन फोनिक्स. सेकेंड बोनस है प्लान स्मार्ट, माइंडफुलनेस में पॉज एज रिएक्शन, साइलेंस एज रिएक्शन, बीइंग इन ग्रेटिट्यूड, प्लान एबीसी, एम्बिग्विटी. इसके भी लेवल 2 में है परमिट योर सेल्फ टू ड्रीम, हायर सेल्फ एस्टीम, लूजर टू विनर एंड अचीवर, कंफर्ट जोन सिंड्रोम, नेचुरल एबिलिटीज, core competencies, touch base with your strength at the moment of despair, flat out to fantastic next right step, seva, give when you want to receive, examine past conditioning and blockage, victory. Then the third bonus is process versus results, where you require continuous upgrade. How to do that? Tracking along race system, रेस हो रहा है तो ट्रैक कैसे करो. Inherent attitude, elevate standards, mindset reset, facing criticism, core intentions. And इसके जो level 2 है, make it possible in time, maintain high standards being interested, manage time by delegating, which my colleagues volunteered to undertake, musings about life lessons without any utterances, milestones as a result of the process. These are the exercises that will be given. ये कोई plus minus tick नहीं होगा, ये आपके stories से बनेंगे, right? 5M इसको मैं बोलती हूँ. Then the fourth bonus is delegate appropriate mentoring, talent nurturing, मैपिंग एचआर. आपका एचआर तभी सीखेगा जब आप सिखाओगे, राइट, मेंटरिंग करोगे. रोल असाइनमेंट, उनके अपने जो स्ट्रेंथ हैं उसको आप मैप करोगे, प्रोग्रेस ट्रैक उसी के हिसाब से करोगे. किसी मछली को आप पेड़ नहीं चढ़ाओगे, किसी हाथी को आप पानी नहीं तैरवाओगे, राइट. एंड ट्रू इन विथ सेल्फ, इसका लेवल 2 है. डू आई हैव लीडरशिप एबिलिटी, एम आई ए थॉट लीडर, डू आई इंस्पायर, is my long-term goal outlined, do I trust my teammates, developing leadership trait, am I a change maker, initiate strategic moves, what strategic partnership, do I invest in team building, conscious decision making. Joypreneurship is the ultimate when you go for prominence. We are afraid of being happy. ये आपको बताए. So let us know how you can do that. Creative diversion, investing in a new skill, monetizing the skill, social cause, inhabit the world. Global citizen आप बनोगे, इसका level 2 है. Can I integrate global teams, accessing inner job? This is in triplets and what I call as joy. Juggle out of the box yardstick, right? And the entire bundle is meant to orient you about influence with resourcefulness, growing inner strength, building credibility, being resilient, implant influence, anticipating and preparing for change. And the entire bundle is 59,994, which will be, the webinar price will be
Uh, Let us see what results you will get. In level 1 itself, with that tiny price. First week you will get finding your USP, unique selling proposition. Decide if you are doing what you like doing. Second week में making the mindset document, know the person you are at the moment. Third में winning trust of seniors, understand their vision. Winning trust of peers, resolve the gap in perception. गोल सेटिंग में ड्रीम लाइक ए वाइल्ड बर्ड, कुछ भी है उसको लिखो पहले. देन ड्रीम ट्रैकर, पुट ए टाइम फ्रेम टू योर ड्रीम. अब थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाओ, दे दो. देन टर्निंग ए नेगेटिव स्टोरी टू ए पॉजिटिव वन इंस्टेंटली. ये माइंडसेट रिसेट है, चेंजिंग गियर टू पॉजिटिविटी. We will take 2 weeks for that. Reinforcement of positive thoughts, shifting paradigm, attitude and perception. Reinforcement of positive thoughts, shifting paradigm, habit and action. Creating a success blueprint, clarity about current workplace issues. Confidence installation, proactive, not reactive. Mindfulness, empathy. Transition map. Integration of passion and emotion with work. These are the 14 goals, results, that outcome that you will achieve. These are establishing credibility at your level. And as we say, we make growth obvious. Once you grow and fix yourself within this yardstick, growth will be inevitable. And the webinar's price is just 1 rupee less of 6,000, 5,999 per head. And you can write to me at mail@leadingwithsangeeta.com. So thank you for watching and thank you for being here, and see you in the class. Thank you.